Good morning everyone. Today we will going to start our last lecture on this chapter, that is on equality. So students, so let's start. Yes students, so now we will discuss on the topic of issues of equality in other democracy. So now let's see what are the issues of equality in other democracy. So students, you are probably wondering whether India is only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist. तो स्टूडेंट शायद आपके कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि क्या इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसमें ही इनइक्वालिटी है और लोग जो हैं वो इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल वहाँ पर करते रहते हैं. पर स्टूडेंट्स, द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड the issue of equality continue to be the key issue around which communities struggle. बस स्टूडेंट, ट्रुथ तो ये है कि वर्ल्ड के जितने भी ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसमें इक्वालिटी के इश्यूज़ पर हम स्ट्रगल चलता रहता है. For example, in the United States of America, the African American whose ancestors were the slaves or who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. जैसे यूएसए है, यूएसए में जो अफ्रो अमेरिकी लोग हैं, यानी जिनके जो एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, उनके वो गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए जो स्लेव्स हैं उनकी वो संतान थे. वो अभी भी अपने जीवन को, अपनी लाइफ को ऐसे ही इनइक्वालिटी में वो क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं अपनी लाइफ. जबकि क्या है कि this despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African American, and prior to this African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. सो स्टूडेंट्स, क्या था कि जब लेट 1950s में अफ्रो अमेरिकी लोगों को जो इक्वल राइट्स हैं वो दिलाने के लिए यहाँ पर क्या हुए, मूवमेंट, यहाँ पर आंदोलन हुए थे. और इससे पूर्व के जो अफ्रीकी अमेरिकन के साथ यूएसए में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी का जो व्यवहार था, बिहेव था, वो होता था. इवन कि जो लॉज थे, उनके जो कानून थे, उसमें भी उनको समानता नहीं मिली हुई थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बस में ट्रैवलिंग करते समय उन्हें एक तो बस में क्या होता था, पीछे बैठना पड़ता था. और अगर ये होता था कि वो कहीं बैठे हैं और अगर कोई भी जो वाइट पर्सन है, यानी जो क्या है अंग्रेज़ है, वो वहाँ बैठना चाहे तो उन्हें अपनी जो सीट है उसे उसको छोड़ना पड़ता था. सो रोसा पार्क्स was an African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that they started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the civil rights movement.
सो स्टूडेंट्स, ऐसे रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन वीमेन थी एंड 1 दिसंबर 1955 को वो पूरे दिन का काम करके थकी हारी अपने घर जा रही थी और वो बस में बैठी थी। तो उसने उस टाइम पर एक वाइट पर्सन को अपनी सीट देने से मना कर दिया और उस दिन उसका जो रिफ्यूज़ल था अफ्रीकन अमेरिकन का, उस लेडी का जो रिफ्यूज़ल था, उसके साथ इनइक्वालिटी को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो जिसको किस नाम से जाना गया, विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। Yes students, so in this slide you can see the Civil Rights Act of 1964 religion or 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin, and it also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools especially set up for them. So however, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country, and most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. So students, in 1964 the Civil Right Act जो था उसमें क्या था, उसमें पूरा प्रोहिबिट किया हुआ था किस चीज़ को, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को। प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रोहिबिशन का मतलब एंड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस के ऊपर, रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजन। सो किसी भी बेस पर आप किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, ये जो एक्ट था इसने ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था कि अब अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे हैं उनके लिए सभी स्कूलों के जो दरवाजे हैं अब खोले जाएंगे और उन्हें अब उन सेपरेट स्कूल्स में नहीं जाना पड़ेगा जो स्पेशली केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। बट स्टूडेंट, इतना होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट अफ्रीकी अमेरिकन जो हैं वो पुअर हैं और ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों में वो प्रवेश लेने के लिए अपना जो है सामर्थ्य अफोर्ड करते हैं उन गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं और जहाँ जो टीचर हैं वो भी क्या हैं, पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पर हैं। एंड इन कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत जो वहाँ वाइट स्टूडेंट्स हैं who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools, जो वाइट स्टूडेंट्स हैं वो स्कूलों में जाते हैं या उन गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर का जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूलों से भी हाई है। Okay students, so moving on next slide. Yes students, so this is our last topic of this chapter, challenge of democracy. So students, no country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. सो मतलब आप ये कहिए कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को
अब पूरे मतलब कि अब कंप्लीटली उसे डेमोक्रेटिक कंट्री तो कह ही नहीं सकते, यू कांट से। और हमेशा से ही क्या हुआ है, ऐसे कुछ एक कम्युनिटीज़ और कुछ एक जो व्यक्ति हैं वो हमेशा होते हैं जो डेमोक्रेसी को नए नए मीनिंग देते हैं और अधिक से अधिक जो इक्वालिटी लाने के लिए नए नए क्वेश्चन भी अराइज करते हैं। और इसके जो सेंटर में ही क्या है, स्ट्रगल है, जो सभी व्यक्तियों को सम्मान और उनके जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो इक्वालिटी दिलवाने का के पक्षधर भी होते हैं। So center of this is the struggle for the recognition of all the person as equal and their dignity to be maintained. So in this book you will read about how this issue of equality affect various aspects of our daily lives in democratic India. Or as you read this chapter, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. So students, इस जो ये जो बुक है इसके मतलब इस बुक के माध्यम से आपको ये फील होगा कि किस तरीके से, किस प्रकार जो इक्वालिटी का जो ये क्वेश्चन है वो इंडियन डेमोक्रेसी में हमारे जो हमारा ये रूटीन का जो हमारी लाइफ है उसमें के विभिन्न पहलुओं को ये इन्फ्लुएंस करता है। और इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमें ये मतलब हमें खुद से ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि क्या सभी के सभी जो यहाँ पर जो इस कंट्री में सभी लोग रहते हैं तो ऑल पर्सन्स जो हैं उनकी डिग्निटी, उनकी इक्वालिटी और उनके मतलब आत्मसम्मान को ऊंचा बनाए रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें खुद में एक मतलब खुद में मनन करने की ज़रूरत है, खुद सोचने की ज़रूरत है। Okay students, so I think this is clear now. So that's all for today and have a good day.